A bank debits money from your account, a crash stops it reaching your friend, बीच में कहीं break हो गया. Which database rule just broke? Hello everyone, welcome back to the Victory Key. In today's lecture, we are going to cover one of the most important DBMS topics for IBPS SOIT officer: ER model, keys, integrity, schema. And I have deliberately kept today's notes very compact. So you don't need to worry about making pages and pages of notes. If you understand these concepts properly, you will be able to solve a large number of DBMS questions. और साथ में ये वाले जो notes है मैं आपको share कर दूंगा. So we don't need to worry about making notes. And one more thing, you need to stay till the end because I will also show you the most common traps that examiners use in these topics. Also, there are a few PYQs, those arise from those have come from these topics. So I'll be discussing them as well. So let's start. So first question, why do we need a DBMS instead of simply storing everything in files? So there are total mainly four reasons. पहली बात तो ये कि redundancy नहीं होनी चाहिए. Second is integrity and security. Fourth is many users at the same time can actually access the data. Fourth is data independence, which actually that means that we can change one layer of the database without having to change something or everything else. ठीक है. अब एक चीज़ याद रखना, जो RDBMS होता है हमारा, that is comprises of rows and columns. RDBMS means Relational Database Management System. So we are dealing with rows and columns, nothing else. ये याद रखना है आपको. One more thing, before understanding DBMS, let's first understand what a database actually is. So suppose if I run a bank, I have information about thousands of customers, their names, account numbers, phone numbers, balances and so on. So where will I keep all this information? अगर मैं files की बात करूँ, अगर मैं files पे रखूँगा इनको, ठीक है, that won't be very much organized, right? So I need some organized place to store it. The organized collection of data is called database. Database क्या होता है? Organized collection of data, right? So now who manages this data? इस database को जो manage कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं DBMS, Database Management System. So it is a software that allows us to store, retrieve, modify and arrange, या फिर go manage all the data. So these are the four things that DBMS is doing. So database is data, DBMS is a system that manages the data, right? We read why DBMS instead of files, because तुम खुद सोचो, अगर हमें पूरा का पूरा कंपनी का डेटा स्टोर करना हो, लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो ये कुड बी काइंड ऑफ सेपरेट एक्सेल फाइल्स probably, लाइक द सेम कस्टमर्स फ़ोन नंबर में अपीयर इन 10 डिफरेंट फाइल्स. कल को ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, तो क्या हम 10 की 10 फाइल में चेंज करेंगे? नहीं. मे बी वी अपडेट 9, नाउ वी हैव 2 डिफरेंट फ़ोन नंबर्स फॉर द सेम पर्सन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज इनकन्सिस्टेंसी. समझ में आया इनकन्सिस्टेंसी कहाँ पर हो रही है? एंड स्टोरिंग द सेम इन्फॉर्मेशन रिपीटेडली इज कॉल्ड रिडंडेंसी. हम एक ही डेटा को बार बार स्टोर कर रहे हैं. अब ये रिडंडेंसी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन करते हैं. ये हम बाद में पढ़ेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मलाइजेशन. मन करे तो आज ही पढ़ लेना, जब हम पढ़ेंगे दोबारा तो आपका रिवाइज हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज अ DBMS help reduce these problems. So it also provides security, integrity, allows multiple users to transact at the same time or work with this data at same time and provide something that is called data independence. Data independence मिलता है हमको थ्रू डेटाबेस. ठीक है, एक लाइन याद कर लो, DBMS help us manage large amounts of organized data reliably. क्या होता है? organized data reliably हम यूज़ कर पाते हैं थ्रू DBMS, राइट? अब यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पे ये आपके रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, डोमेन है. वो मिनट में पकड़ लेता हूँ इसको ताकि आपको दिख जाए. ठीक है, तो अब इस वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज आई हैव दिस टेबल ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, उसमें है हमारे पास स्टूडेंट ID है, देन वी हैव नेम एंड एज एंड देन देयर इज़ अ कोर्स, राइट? अगर हमारे पास ये डेटा है, ऐसे सपोज कर लो, तो हम क्या करेंगे? इन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी दिस एंटायर टेबल, ये जो टेबल बनी हमारी, इसको हम क्या कहेंगे? रिलेशन बोलेंगे. ठीक है, तो आपको क्या हो गया? ये रिलेशन होगा. सो रिलेशन इज एक्चुअली अ टेबल. नाउ लुक एट वन कंप्लीट हॉरिजॉन्टल एंट्री. हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे? ऐसे. ठीक है, ये स्टूडेंट 1, नेम संजय, एज मैं नहीं बता रहा, लेट्स मान लो
सपोज कर लो 30, ठीक है। कोर्स IBPS, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक रो है जिसको हम क्या बोलते हैं, टपल। सो टपल इज इट इज, ठीक। इन सिंपल लैंग्वेज टपल इज रो और रिकॉर्ड। नाउ लुक एट द कॉलम नेम, जो कि हमने यहाँ पर देखा नेम, ये हमारा कॉलम नेम है। तो ये कॉलम क्या हो जाती है एक्चुअली में, दिस डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, तो याद रखना। एंड फाइनली सपोज द एज कॉलम नेम ओनली अलाउज वैल्यू फ्रॉम 18 to 60। जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ पर जो 30 लिखी मैंने, 18 to 60 ही है, सपोज कर लो। यहाँ पर इसकी एक रेंज है जिसको हम क्या बोल देंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया डोमेन किसे बोलते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, रिलेशन होता है टेबल, टपल होती है रो, एट्रीब्यूट होता है आपका कॉलम, और डोमेन क्या होता है, अलाउड वैल्यूज़, ध्यान रखना। अब ये दो चीज़ें आपको दिखा रखी हैं यहाँ पर, जो थोड़ा बोल्ड भी लिखी है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन विच हैव बीन आंसर्ड। पूछ लिया जाता है आपको हर जगह। सी व्हेन आई से पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, it is almost asked everywhere, whether it be interview or in general, अगर आपका वाइवा भी हो रहा है इफ़ यू आर इन कॉलेज, और प्रोबेबली इन द रिटन एग्जाम एज वेल। तो दो चीज़ें हैं, डिग्री और कार्डिनैलिटी, जस्ट लाइक रोज एंड कॉलम्स। आपको ये याद करना है, रिवर्स में बोला जा रहा है। देखो रोज और कॉलम्स बोलते हैं, पर हम यहाँ पर बोलते हैं डिग्री और कार्डिनैलिटी, ठीक है। अब सपोज कर लो, एक एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेट्स फॉरगेट दैट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी फॉर 10 seconds. Imagine this table is a row. The number of columns tell us how wide the table is. क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम tells us how wide the table is, कितनी चौड़ी है। जैसे अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो ये कितनी वाइड है, 4, राइट। सो दिस इज व्हाट इज विड्थ ऑफ दिस टेबल, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री, ठीक है। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा होता है। और अगर मैं कार्डिनैलिटी की बात करूँ तो इट इज़ हाउ टॉल द रूम इज़, और व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टेबल लो है, ठीक। तो डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनैलिटी का मतलब नंबर ऑफ रोज। अगर मेरी टेबल यहाँ पर देखो 5/200 की है, 5 × 200 की है, ठीक। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 5, कार्डिनैलिटी हो जाएगी आपकी 200, ठीक है। दिस विज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बोलना मत, क्योंकि यहाँ पर लोग जो कम पढ़ रहे होते हैं वो भूल जाते हैं, अभी तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से ये जो मैंने ट्रैप दे रखा है, ये ट्रैप पढ़ लो, इस ट्रैप में क्या लिखा हो रहा है। नेक्स्ट इज आर ER मॉडल। अब हम ER मॉडल पढ़ते हैं। ER मॉडल का मतलब क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक है। अब भाई रिलेशनशिप तो सबको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा तुम लोगों को। एंटिटी की बात करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज वी आर डिजाइनिंग अ डेटाबेस फॉर अ कॉलेज। कॉलेज का है तो फिर आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, कोर्स होंगे, एंड स्टूडेंट्स वुड एनरोल इन सम कोर्सेज। नाउ बिफोर एक्चुअली स्टोरिंग द डेटा वी नीड टू डिजाइन हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। क्या क्या बताया हमने, स्टूडेंट है, कोर्स है, और या स्टूडेंट है, कोर्स के लिए एनरोल करेंगे, तो फिर उनके लिए हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसको पहले से डिज़ाइन करना पड़ता है। सो एक डिज़ाइन को बनाओगे अब, तो कहीं पर लिखोगे ना या बनाओगे, तो जब उसको बनाया जाता है पेपर पे या फिर कहीं और पे, तो उसे क्या बोलते हैं, ER डायग्राम बोलते हैं। सो एक्चुअली ER मॉडल जो होता है आपका, वो होता है आपका क्या, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। किसका होता है, थोड़ा बड़ा हुआ है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस, ठीक है, याद रखना। सो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डिज़ाइन, नॉट एक्चुअल डेटा। ये याद रखना कि ये एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये क्या करता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सिर्फ और सिर्फ। अब देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी यू नीड टू रिमेंबर। एंटिटी क्या है, सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो एंटिटी इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट अबाउट विच वी वांट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने जावा पढ़ा होगा, रियल वर्ल्ड एंटिटी पढ़ा होगा, याद आ गया ना, रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो एंटिटी क्या होता है, थिंग होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको स्टोर करनी है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, एम्प्लॉय आपका एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एंटिटी है, बुक एंटिटी हो सकती है। अब AR डायग्राम की बात करो तो एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से, याद रखना हमेशा रेक्टेंगल से। अब दो तरीके की एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक। अब समझने के लिए देखो, सपोज स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक स्टूडेंट ID, ठीक।
तो स्टूडेंट आईडी कैन आइडेंटिफाई एवरी स्टूडेंट, सो देयरफॉर स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज वेल, बिकॉज स्टूडेंट को आप कैसे डिफाइन कर रहे होगे, आईडी से, राइट। द स्टूडेंट खुद को तो डिफाइन कर ही सकता है। सो दिस मेक्स स्टूडेंट अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी का होता है क्या है, इट हैज़ इट्स ओन प्राइमरी की, ठीक है, याद रखना प्राइमरी की होता है, स्टैंड्स अलोन विच मीन्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। स्टैंड्स अलोन का मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये रहता है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब अगर हमें स्ट्रॉन्ग पता चल तो वीक क्या होगा, वीक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड होगा समहाउ। नाउ इमेजिन कि देयर इज़ अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर एसोसिएटेड विद एन एम्प्लॉय, राइट। जैसे मैं हूँ, मेरे जो फादर मदर हैं, दोज आर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर इफ़ आई टॉक अबाउट सम मेडिकल इंश्योरेंस, राइट। बट एम्प्लॉय तो मैं हूँ, वो लोग क्या है, डिपेंडेंट एंटिटी है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एंटिटी बोला जाएगा, ठीक। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयज़ की, वो एम्प्लॉय से रिलेटेड रहेंगे, सो दैट कॉल्स आउट अ वीक एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का क्या होता है, खुद की होती है, ओन प्राइमरी की। और वीक एंटिटी का क्या होता है, डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन, कैन नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ, पार्शियल की प्लस द ओनर्स की, डबल रेक्टेंगल से हम डिनोट करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट्रीब्यूट के टाइप्स लिखे हुए हैं, कितने तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब जैसे मैंने एंटिटी की बात की, तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी की प्रॉपर्टी को बताता है। एक स्टूडेंट है आपका, स्टूडेंट के पास क्या होता है, नेम होता है, रोल नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ है, कौन नंबर है, एज है, ठीक है। दीज आर व्हाट, एट्रीब्यूट्स, ठीक। अभी किस तरीके के एट्रीब्यूट्स है ये आपको देखना है। एंटिटी हमने बताया क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एट्रीब्यूट क्या होगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑब्जेक्ट, ठीक। की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, फिर से एग्जांपल से पढ़ते हैं। सपोज करो हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं नाम लूँ एक राहुल, जो कि हिंदी मूवीज़ में बहुत बार सुनने को मिलता था पहले, तुम्हारे आयु मैनी ऑफ यू आर जेंजीज, तो फिर राहुल बहुत ही कॉमन नेम नहीं है। सो सपोज करो राहुल कॉमन नेम है और 50 राहुल एग्जिस्ट करते हैं। सो हेयर द नेम वुड नॉट बी यूनिक टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट, बट रोल नंबर माइट बी यूनिक। मेरा रोल नंबर क्लास 10th में आई गेस 37 था, सो दैट वाज यूनिक फॉर माई सेल्फ इन क्लास 10th, राइट। देयरफॉर रोल नंबर कैन एक्ट एज अ की एट्रीब्यूट, तो वो की एट्रीब्यूट है, इसके हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, ओवल से, ठीक है, याद रखना। और सिर्फ ओवल नहीं, एक्चुअली में ये क्या होता है आपका, अंडरलाइंड ओवल होता है। कैसा होता है, अंडरलाइंड ओवल, यहाँ पर लिखा है दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट समझने के ऐसा समझो कि किसी की एज है, राहुल है, ठीक। तो या फिर कोई और है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हम या तो स्टोर कर सकते हैं या तो हम एज स्टोर कर सकते हैं। अब सपोज करो हम बात करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट की। एक कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लिखा है, शुड द डेटाबेस स्टोर योर एज। अगर आपका स्टोर करने लग जाएंगे एज, तो बर्थडे के दिन आपकी इस एज को अपडेट कौन करेगा, राइट। बिकॉज एज इज नाउ परमानेंटली स्टोर्ड। आज 21 है किसी की उम्र, तो कल 22 हो सकती है, राइट। तो समवन वुड हैव टू अपडेट द स्टोर्ड एज। सो इंस्टेड व्हाट वी वुड बी डूइंग इज वी कैन कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, देयरफॉर वी विल बी स्टोरिंग डेट ऑफ बर्थ इंस्टेड ऑफ एज, राइट। तो हम क्या करेंगे, एज हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उसको हम स्टोर नहीं करते हैं, सो दिस बिकम्स अ डिराइव्ड। और इसको कब कर रहे होते हैं, क्वेरी टाइम पे ही हम निकाल लाते हैं एज को, सो दिस इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। द वैल्यू वुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम डिनोट करने के लिए डैश्ड ओवल बनाते हैं, यहाँ पर लिखा होगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज अ डैश्ड ओवल, ठीक। नेक्स्ट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, इट मीन्स समथिंग दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल स्मॉलर पार्ट्स, ठीक। मीनिंगफुल स्मॉलर पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, जैसे हम बात करते हैं नेम की, यहाँ नेम है, ठीक। अब नेम ले लो नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो नरेंद्र मोदी जैसे नाम है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम और सेकंड नेम पे, राइट। सो दिस कैन बी डिवाइडेड, सो दिस बिकम्स अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, फिर हम सिंगल वैल्यूड पढ़ेंगे, पहले मल्टी वैल्यूड पढ़ लें। जैसे मैंने फ़ोन नंबर की बात करी थी, वन कैन हैव
डिफरेंट फ़ोन नंबर्स। अगर मेरे पास 3 मोबाइल नंबर है तो आई नीड टू स्टोर ऑल द 3 नंबर्स राइट। सो अगर मुझे 3 नंबर स्टोर करने हैं तो क्या वैल्यू मैं अलग-अलग स्टोर करूँगा? जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। जैसे स्टूडेंट का था, स्टूडेंट के अगर पेरेंट नंबर या पेरेंट कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करना है तो दे कैन बी 2 और 3 एज़ वेल राइट। सो फॉर दैट वी नीड टू हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे बताते हैं? ऐसे डबल ओवल सो ठीक है। एक चीज़ याद रखना, कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड में। कंपोजिट जो होता है आपका दैट कैन स्प्लिट इनटू पार्ट्स, बट मल्टी वैल्यूज जो होता है वो सेम टाइप का होता है। जैसे नेम को हम फर्स्ट नेम और सेकंड नेम में डाल सकते हैं पर फ़ोन नंबर को हम नहीं डालेंगे, ठीक है। कंपोजिट आपका जो होता है वो स्प्लिट हो जाएगा और मल्टी वैल्यू जो होगा काउंट होगा। याद रखना, मल्टी वैल्यू में आप काउंट लगा सकते हैं, कंपोजिट में आप स्प्लिट लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ रिलेशनशिप। अब सुनो, इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि सिंगल वैल्यूड जो होता है वो ओवल से डिफाइन होता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ, इसकी वैल्यू सिंगल ही रहेगी। की जो रहता है आपका वो अंडरलाइंड रहेगा और सिंपल एट्रीब्यूट आपका ओवल होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर रोल नंबर जैसे बताया था वो उसमें इंक्लूड कर दिया था की का, बट दैट वाज। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको याद न रहे कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जो भी जिसकी भी वैल्यू चेंज हो सकती है दैट इज़ एक्चुअली अ डिराइव्ड वैल्यू और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी होती है। जैसे एंटिटी की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट हो या बुक हो, हाउ दे वुड बी कनेक्टेड। अ स्टूडेंट कैन बोरो अ बुक, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। और आई कैन से अ बुक कैन बी बोरोड बाय अ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट और बुक के बीच की रिलेशनशिप क्या है? बोरोज या फिर हैज़। ईयर डायग्राम में इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं डायमंड, ठीक है। ये रहा आपका डायमंड, आप इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें डिग्री होती है, जैसे हमने डिग्री पढ़ी थी, ऊपर डिग्री और कार्डिनलिटी पढ़ी थी टेबल में, वैसे रिलेशनशिप में भी डिग्री होती है। सो नाउ बी केयरफुल हेयर, ठीक है। क्योंकि दोनों की डिग्री डिफरेंट है। हाउ मैनी एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट इन दैट रिलेशनशिप एक्चुअली डिफाइंस द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जैसे अगर सिर्फ एक ही एंटिटी टाइप है तो उसको हम क्या करेंगे? यूनरी बोलेंगे। 2 है तो बाइनरी, टर्नरी है तो सॉरी 3 है तो टर्नरी, नहीं तो एनएरी इफ मोर देन 3। जैसे अ पर्सन वुड बी मैरिड टू अ पर्सन, ठीक है, तो दैट इज़ अ यूनरी रिलेशनशिप। स्टूडेंट और कोर्स का बोलूँ या स्टूडेंट और बुक्स का बोलूँ तो दैट वुड बी अ बाइनरी रिलेशनशिप, राइट। डिग्री ऑफ अ टेबल क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स, ठीक है। कार्डिनैलिटी की बात करते हैं हम। कार्डिनैलिटी इस उसको समझने के लिए एक चीज़ समझो कि सपोज करो वन डिपार्टमेंट हैज़ मैनी एम्प्लॉयज़, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में क्या हो गए? मैनी एम्प्लॉयज़ हो गए, दैट मीन्स वन टू मैनी रिलेशनशिप बन रही है, राइट। और वन टू एन रिलेशनशिप बोल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन हैव वन टू वन मैपिंग। जैसे एक अगर मैं स्ट्रीम की बात करूँ तो देयर वुड बी वन एचओडी फॉर अ सिंगल डिपार्टमेंट, दैट इज़ अ वन टू वन मैपिंग और रिलेशनशिप। और कार्डिनैलिटी, वन टू मैनी में आप बोल सकते हो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स और मैनी टीचर्स। मैनी टू वन भी ऐसे ही होगा, स्टूडेंट टू डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयज टू डिपार्टमेंट, राइट। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। सो दिस इज अनदर टर्म विच इज़ वाइडली यूज। क्वेश्चन आता नहीं है जनरली बट इट्स बेटर टू रिमेंबर, क्या पता कभी आ जाए। सपोज एवरी एम्प्लॉय मस्ट बिलोंग टू अ डिपार्टमेंट। हर एम्प्लॉय को किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ अगर हमें असाइन करना है, इफ दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन देन एवरी एम्प्लॉय पार्टिसिपेट्स इन दैट रिलेशनशिप। सो दैट मीन्स इट इज़ अ टोटल रिलेशनशिप और टोटल पार्टिसिपेशन। और अगर पार्टिसिपेशन ऑप्शनल हो तो हम क्या बोलेंगे? उसे पार्शियल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। एआर नोटेशन में डबल लाइन का मतलब होता है टोटल पार्टिसिपेशन, सिंगल लाइन का मतलब होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम ट्रैप देखियो। एज इज डिराइव्ड, बर्थ डेट, नेम एंड फोन नंबर आर स्टोर्ड, डू नॉट पिक द सोर्स। दे डू नॉट पिक द सोर्स। कंपोजिट का मतलब होता है सब पार्ट में डिवाइड हो सकता है। मल्टी वैल्यूड का मतलब होता है दे इट कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज, इंटरचेंजेबल नहीं होते। डिक्रीज डज डबल ड्यूटी, टेबल में अलग मतलब होता है, क्या होता है? कॉलम। रिलेशनशिप में मतलब होता है नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है। इसको याद रखना।
सो नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच इज़ कीज़। ठीक है, उससे पहले एक चीज़, अब गाइस कुड रिक्वेस्ट बिफोर वी मूव अहेड, if you are finding this useful, especially if you are preparing for IBPS SOIT, CBIT or PFRDIT, please share this video with your friends who are preparing for these exams. My immediate target is 5,000 subscriber. Right now I'm at around 2,040 or something. And once we hit 5,000, I will immediately start bringing you PFRDIT and CBIT preparation content, including the most important questions that you should actually practice for the exam. Share it with other and also comment down here with SEBI IT or PFRDA IT, NABARD IT, whatever you are preparing with. So if you want that content, help me reach 5,000, just share this video with your preparation group. Alright, let's continue. What is a key? Think about your Aadhaar number, employee ID or roll number. The purpose is to identify a particular person or record, right? So in a database, a key is an attribute or combination of attributes used to identify record. There are three types of keys. अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ तो वन इज़ प्राइमरी की, सेकंड इज़ कैंडिडेट की, थर्ड इज़ सुपर की। ठीक, तो हम टॉप डाउन अप्रोच पे चलते हैं, सुपर की से स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट आईडी है विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी स्टूडेंट, दैट मीन्स स्टूडेंट आईडी प्लस नेम विल ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी स्टूडेंट, राइट? अब स्टूडेंट आईडी प्लस नेम प्लस फोन नंबर विल ऑल्सो आइडेंटिफाई एवरी स्टूडेंट, राइट? सो ऑल ऑफ दीज कैन बी सुपर कीज। ऐसा क्यों? बिकॉज दे कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल, ठीक है? बट दे मे कंटेन अननेसेसरी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट आईडी है हमारे पास, बट अब मुझे अब नेम की क्या ज़रूरत है अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कोई रो को, ठीक? तो सुपर की क्या होती है? समथिंग दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इवन इफ इट कंटेन्स एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं वो उसमें, ठीक है? सपोज करो स्टूडेंट आईडी अलोन कैन आइडेंटिफाई और इज सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई अ रो। We don't need any name, we don't need any phone number, we don't need anything else. So this is the minimal super key. क्या है? minimal super key है, and a minimal super key is called a candidate key. ठीक है, तो हमारी कैंडिडेट की क्या हो गई? मिनिमल सुपर की। याद रखना ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक? सो मिनिमल का मतलब क्या होता है? रिमूव एनीथिंग फ्रॉम इट एंड इट विल नो लॉन्गर यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। कुछ भी और तुमने हटाया तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा रिकॉर्ड को। नाउ कम्स द प्राइमरी की। सो अब सपोज कर लो हमारे पास 3 कैंडिडेट की है, जो कि है हमारी स्टूडेंट आईडी, ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट नंबर मान लो, ठीक है? हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 कैंडिडेट की है। अब वी नीड टू सिलेक्ट वन ऑफ देम एज द मेन की। और तुम सोच रहे हो कि यार स्टूडेंट के लिए हम पासपोर्ट की क्यों रख रहे हैं? तो दैट इज़ द रीज़न आई हैव चूजन दिस एग्जाम्पल। सी द सिलेक्टेड कैंडिडेट की बिकम्स द प्राइमरी की आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट की। सो प्राइमरी की क्या होती है हमारी? इट इज़ एक्चुअली अ यूनिक की प्लस इट शुड नॉट बी नल। ये जो कंडीशन है ना हमारी, ये इंपॉर्टेंट है। Unique means two records cannot have the same primary key. Not null means the primary key cannot be missing. And a table has exactly one primary key. अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख रखा है मैंने। थिंक ऑफ हायरिंग नॉट डेफिनेशंस, एवरीवन हु कुड डू द जॉब। अब उन सबको बुलाओगे, द एग्जैक्टली क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्ट, ठीक है? देन देयर आर द वन यू हायर फ्रॉम ऑल दोज यू हैव कॉल्ड। तो पहला वाला क्या है? सुपर की, क्योंकि आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। सेकेंड इज कैंडिडेट की, क्योंकि ये सारे के सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। आपने जिनको चूज़ किया वो क्या है? हमके प्राइमरी की, ठीक है? अब जो बच गए उनको क्या बोलते हैं हम? ऑल्टरनेट की। तो अब पढ़ते हैं ऑल्टरनेट की। व्हाट हैपेंस टू द कैंडिडेट की दैट वी डिडंट सिलेक्ट? तो दे बिकम ऑल्टरनेट कीज। सो इफ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की एंड ईमेल आईडी वाज अनदर कैंडिडेट, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑल्टरनेट की हो जाएगा। सी पासपोर्ट नंबर कैन बी ब्लैंक, नो नल हो सकता है, इससे इट कैन नॉट बी चूजन एज प्राइमरी की, ठीक है? अब एक और की आती है आपकी। हमने क्या क्या पढ़ लिया? सुपर की पढ़ लिया, कैंडिडेट पढ़ लिया, फैमिली पी की पढ़ लिया, ऑल्टरनेट पढ़ लिया। और हम पढ़ते हैं कंपोजिट की। नाउ समथिंग, समटाइम्स वन एट्रीब्यूट इज नॉट इनफ टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ठीक, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम एक और की को यूज़ कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन अ स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट टेबल। स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी अलोन वुड नॉट बी इनफ बिकॉज
एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है, राइट। जैसे स्टूडेंट नंबर 37 है, उसने 2-3 कोर्स ले रखे हैं, IB SSOIT भी ले रखा है, CBIT भी ले रखा है। देन देयर इज अनदर कैंडिडेट हु हैज़ टेकन CIL एज वेल अलॉन्ग विद दिस टू, या फिर DCIU ले रखा है। तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई यूनिकली कि रोज़ के इस इन टेबल के लिए मैं क्या प्राइमरी की रखूँ। तो ना ही मैं स्टूडेंट आईडी ले सकता हूँ या कोर्स आईडी ले सकता हूँ, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल कोर्स आईडी फॉर same course ID for multiple students. So what I can do is student ID plus course ID together won't be able to identify the enrollment. So that becomes a composite key. समझ में आया? So composite key actually takes 2 or more attributes which can be used together as a key. Next is your foreign key. Foreign key बहुत अच्छी की होती है और यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है दूसरे टेबल में, ठीक है। फॉरेन की हल्की सी डिफरेंट है। सो सपोज करो 2 टेबल है हमारे पास, एक डिपार्टमेंट टेबल और एक एम्प्लॉय टेबल में, ठीक। एक डिपार्टमेंट और एक एम्प्लॉय, CS डिपार्टमेंट। और सपोज जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, सो देयर वॉज E+D डिपार्टमेंट, एक्सपीरियंसेस एंड डिवाइसेस, एंड देयर कैन बी मल्टीपल एम्प्लॉय, जैसे मैं उसका एक एम्प्लॉय था। तो डिपार्टमेंट ID इन एम्प्लॉय पॉइंट्स टू अ डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट टेबल, ठीक। जैसे संजय है, उसकी डिपार्टमेंट आईडी लिख रखी है, मान लो E+D की 2 थी, तो लिखा हुआ है संजय के आगे 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो 2 है दैट बिकम्स अ फॉरेन की, राइट, बिकॉज इट पॉइंट्स टू अ डिपार्टमेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल। ये जो 2 होगा वो डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की होगा, ठीक। सो फॉरेन की क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन 2 tables, and remember 3 things. 1, foreign key can generally repeat. 2, they can be null wherever permitted. ठीक। 3, and they do not have to uniquely identify the employee. यानी जहाँ की जिसमें वो फॉरेन की है ना, वहाँ पर उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव मल्टीपल पीपल इन माई, और जिनके लिए डिपार्टमेंट आईडी E+D थी, ठीक है। तो दैट 2 और द E+D डिपार्टमेंट वुड नॉट आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय यूनिकली, ठीक है, क्योंकि ये जॉब किसका है, प्राइमरी की का। एग्जाम्पल यहाँ पर और लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना। ये लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, प्राइमरी कीज यूनिक प्लस नॉटल, अभी ऊपर पढ़ाया था। एग्जाम ट्रैप लिखा हुआ है, एवरी सुपर की इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। ये फॉल्स है, बिकॉज ओनली वन कैंडिडेट की इज चूजन। अ कैंडिडेट की मस्ट बी मिनिमल, अ सुपर की नीड नॉट बी। द फॉरेन की रेफरेंसेस द प्राइमरी की, नॉट द अदर वे राउंड। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और नल। ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट एक्चुअली इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो पढ़ लो, ध्यान दे देना थोड़ा सा, 2-4 मिनट लगेंगे, दैट्स इट। 3 तरह के कंस्ट्रेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, डोमेन एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। इससे पहले जो हमने यहाँ पर पढ़ा था सुपर की, ठीक है, एक बार कनेक्ट कर लेते हैं उसको। फ्रॉम सुपर कीज रिमूव अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स, तो हमें क्या मिलती है, कैंडिडेट की। और अगर हम कैंडिडेट की से एक चूज़ कर ले तो क्या बन जाती है हमारी, प्राइमरी की। बाकी सारी की क्या होंगी, ऑल्टरनेट की, ठीक है। तो रिमेंबर इट, पहले है हमारा सुपर, फिर है हमारा कैंडिडेट, फिर है हमारा प्राइमरी की, ठीक, याद रखना। और जो इंटीग्रिटी की बात मैं कर रहा था, सो पहले इंटीग्रिटी का वर्ड हम समझते हैं। इंटीग्रिटी सिंपली मीन्स कीपिंग द डेटा करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। क्या होता है, करेक्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। 2 C से याद रखना, ठीक। अब सपोज समवन सेज इज 215, इनवैलिड डेटा है ना, राइट। सो और या फिर सपोज करो एन एम्प्लॉय सेज दैट इट बिलोंग टू डिपार्टमेंट 999 बट डिपार्टमेंट 999 डजेंट एग्जिस्ट, तो देर इज अ प्रॉब्लम देयर, सो दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, डेटाबेस में हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाते हैं, सो दैट वी डोंट गो इनटू सच इनवैलिड सिचुएशन। अब समझ में आ गया आपको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है। पहला है डोमेन इंटीग्रिटी। तो डोमेन का मतलब होता है कि कौन कौन सी वैल्यू हम अलाउ करेंगे, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या है, विच वैल्यूज अ कॉलम में होल्ड, टाइप, रेंज और चेक, ठीक। जैसे याद करो, जैसे एज होता है आपका 18 से 60 के बीच में रख रहे हैं, तो वी वुड नॉट एक्सेप्ट 500 और 250 वट एवर आई टोल्ड। तो डोमेन इंटीग्रिटी कंट्रोल्स व्हाट वैल्यूज आर अलाउड इन अ कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एंटिटी इंटीग्रिटी।
इट ओनली सेज प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। ठीक है, इसका मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइमरी की क्या कर रहा होता है, आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। किसी को प्राइमरी की है या नहीं कैसे बताएंगे हम, एंटिटी इंटीग्रिटी से। So if the primary key itself is missing, how will we identify the record? Therefore, primary key cannot be null. So that's entity integrity. ये question आ जाता है कि primary key cannot be null. What kind of integrity it is, right? Next is referential integrity. अब referential integrity को समझने के लिए फिर से एक और एग्जांपल सोचो। एम्प्लॉय टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है हमारे पास 10, बट डिपार्टमेंट 10 डजेंट एग्जिस्ट इन डिपार्टमेंट टेबल, जैसे मैंने ट्रिपल लाइन बताया था इससे पहले। सो हेयर वी हैव अ ब्रोकन रेफरेंस। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में हमने डिपार्टमेंट आईडी डाल दी 10, पर डिपार्टमेंट आईडी 10 तो डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो ये रेफरेंस बन रहा था कि इसका वो गलत रहे। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाते हैं, सो दैट वी डोंट रन इनटू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। It ensures that a foreign key refers to a valid referenced value whenever applicable। ठीक, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को आप जब भी देखते हो तो आप फॉरेन की याद कर लेना। ठीक है, या फॉरेन की पूछा आ जाए तो फट से टिक मार देना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यहाँ पर मस्त एग्जांपल समझा रखा है, एक बार इसको पढ़ लेना। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी रिसेंटली एट क्लाउड एरा आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट जिसमें डिलीट कर रहे थे हम लोग एक इंस्टेंस, ओवरडेट हो जा रहा था। इट वाज नॉट चेकिंग वेदर दैट इंस्टेंस इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर वर्क स्पेस। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी गोल्ड करनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखना डिलीट में कितना खतरनाक चीज़ हो सकती है। ठीक, उससे पहले ये पढ़ते हैं। अगर आप कोई डिपार्टमेंट क्लोज करने वाले हो तो उसके स्टाफ का क्या होगा, हम उसके स्टाफ को भी निकाल देंगे क्योंकि हम डिपार्टमेंट क्लोज कर रहे हैं, या फिर हम उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यानी दूसरी डिपार्टमेंट आईडी दे देंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि हम उनको बेंच पे बैठा दें, जैसा कि सर्विस बेस में रहती है कि इनको रखे रहो, नो डिपार्टमेंट इज असाइन राइट। ठीक, तो अब समझो डिफरेंट एक्शंस के लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, जैसे कास्केड यूज़ होता है। दैट मीन्स पेरेंट इज रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैव डिलीटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जो मैंने पहला ऑप्शन बताया था कि एम्प्लॉयज़ को भी निकाल दो। सेट नल मीन्स द एम्प्लॉय रिमेन्स बट द डिपार्टमेंट फील्ड बिकम्स नल। सेट डिफॉल्ट, दे मूव टू अ डिफॉल्ट डिपार्टमेंट, हमने किसी डिफॉल्ट डिपार्टमेंट में डाल दिया। एक नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्ट का नो एक्शन। इसका मतलब क्या था, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट द डिपार्टमेंट वाइल डिपार्टमेंट रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अगर डिपार्टमेंट का कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, देयर आर एम्प्लॉयज देयर, यू वोंट बी एबल टू डिलीट द फुल डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते कमिट से। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये तीनों के तीनों डिफरेंट है इससे। ठीक है, दोज आर ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स नॉट रेफरेंशियल एक्शंस। ये क्या है, हमारे रेफरेंशियल एक्शंस। लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, गलत तो बिल्कुल मार्क मत करना। ठीक, यहाँ एग्जांपल दे रखा है, पॉज कर लो, पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बोला। तो नल इज़ नॉट ज़ीरो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आपको याद होना चाहिए। और DBMS का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैप होता है, इंपॉर्टेंट नहीं, कॉमन ट्रैप होना चाहिए। सपोज द स्टूडेंट हैजन प्रोवाइडेड देयर फ़ोन नंबर। ठीक है, तो हम क्या स्टोर करेंगे, हम उसको नल स्टोर करेंगे। डज दैट मीन इट इज़ ज़ीरो? नो। ठीक है, क्या नल का मतलब यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया? नो, नल एक्चुअली मीन्स द वैल्यू इज मिसिंग, अननोन और अनअवेलेबल। ठीक है, याद रखना क्या होता है, अननोन, अनअवेलेबल या फिर मिसिंग। ज़ीरो नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। जैसे इफ समवन मार्क्स एट ज़ीरो दैट्स एन एक्चुअल वैल्यू, इट्स नॉट नल। अगर उसके मार्क्स एंटर नहीं किए गए यानी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, देन इट कैन बी नल। ठीक, सो नल इज नॉट ज़ीरो, नल इज नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग, याद रखना। And because null represents an unknown or missing value, comparison involving null can produce unknown। कंपैरिजन करने पे अननोन आ सकता है। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से एसक्यूएल में ये नल की वजह से तीन वैल्यूज रहती है, ट्रू, फॉल्स या फिर अननोन लॉजिक की।
लॉजिकल वैल्यू 3 रहेंगी, 2 नहीं है। जनरली ट्रू और फॉल्स होना चाहिए या 0 और 1 होना चाहिए, बट वी हैव 3। नेक्स्ट इज अ स्कीमा वर्सेस इंस्टेंस। अब क्या है ये? अब सपोज करो मैं तुम्हें ब्लैंक एडमिशन फॉर्म दे दूँ, ठीक, तो तुम क्या करोगे? कुछ भी भर दोगे, तुम्हें नहीं पता है कि क्या डिटेल्स भरनी है, और मुझे जो डिटेल्स चाहिए वो तुम कैसे दोगे, क्योंकि मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कुछ। तो एक्चुअली जब फॉर्म होता है डिफाइंस व्हाट इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड, जैसे नेम है, आपका रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, कोर्स है। सो इट एक्चुअली मेक्स अ स्कीमा। क्यों? क्योंकि स्कीमा में क्या आ गया, आपका डिज़ाइन रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, टेबल है, कंस्ट्रेंट है। अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ, नाउ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विल फिल आउट दैट फॉर्म, ठीक, 1000 लोगों ने भरा। अब ये जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो करेंटली अब प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंस कहेंगे। ठीक है, रिलेट कर लो इंस्टेंस क्या होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो स्कीमा इज एक्चुअली व्हाट? डिज़ाइन। स्कीमा को हम क्या बोलते हैं? डिज़ाइन। और इंस्टेंस क्या होता है? डेटा। ठीक है, इंस्टेंस क्या? आपका करंट डेटा, याद रखना है। स्कीमा चेंज कब होता है? जब स्ट्रक्चर चेंज होगा। जैसे मैंने पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कर दिया एक कॉलम, स्कीमा चेंज हो गया, पूरा का पूरा डेटा टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो स्कीमा चेंज हो जाएगा। इंस्टेंस चेंज कब होगा? जब मैं उस कॉलम के लिए एक्चुअली मैं एंट्री डाल रहा हूँ, एक्चुअली मैं डेटा डाल रहा हूँ, या फिर डेटा चेंज करो, मान लो किसी का फ़ोन नंबर अपडेट हुआ तो इंस्टेंस भी चेंज हुई है। ठीक, तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है, उसको खुद से पढ़ लो, दिस इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। 3 तरीके के स्कीमा होते हैं, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल, इंटरनल। ठीक, कौन इसको देख सकता है? एक्सटर्नल को एंड यूजर देख सकता है, कॉन्सेप्चुअल वाले को डीबीए या डिज़ाइनर देख सकता है, इंटरनल आप भी नहीं देख पाओगे, सिस्टम को पता होगा, डीबीएमएस देख पाएगा। ठीक, इंटरनल क्या होता है? फिजिकल स्टोरेज और इंडेक्सेस होते हैं इसमें। एक्सटर्नल में यूज़र व्यू या सबसेट होता है। कंसेप्चुअल में लॉजिकल डिज़ाइन है कि स्ट्रक्चर क्या हुआ। ठीक है, अगेन दिस वी हैव रेड, एक बार पॉज करके पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा है वो सही सही से पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। ठीक, चलो फटाफट से पीवाईक्यू कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन आए थे जितना भी हमने पढ़े हैं। रूल क्या है यहाँ पर कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर रुकूंगा, तो थोड़ी देर का साइलेंस रहेगा, उसमें आप ट्राई करना कि आप खुद से सॉल्व करो। एंड इफ़ यू वांट मोर टाइम जस्ट पॉज इट, बिकॉज मेरा सॉल्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने खुद से ट्राई ना किया हो। आप गलती करोगे तो यहाँ पर गलती होगी, बाद में नहीं करोगे। अगर आपने यहाँ पर सीधे आंसर पढ़ लिया, वहाँ जाके गलती कराओगे तो दैट विल कॉस्ट योर ईयर, कॉस्ट अ ईयर एटलीस्ट। ठीक है, एक बात और, जिससे मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए उस दिन से मैं रेगुलर डेली डालना स्टार्ट कर दूंगा, और प्रोबेबली ऑल्टरनेट IBPS सोसाइटी तो आपकी पूरी प्रिपेयर करवा दूंगा मैं। जैसे मेरे 5000 हो गए, अगर जल्दी कर दोगे तो तुम्हारी ज़्यादा प्रिपरेशन होगी, एंड आई मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई दिस एग्जाम्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करते रहो। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ दीज इज़ अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा था हमने, फ़ोन नंबर है, नेम, एज, बर्थ डेट, स्टूडेंट। सही से पढ़ा होगा तो फट से आंसर कर दोगे। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग इन दोनों में। ठीक है, एज ऑफ बर्थ डेट में, बिकॉज ये सारी तो डायरेक्ट आती हैं वैल्यू इनकी, दीज आर नॉट राइट। इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। जब डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा होता है? द वन विच इज़ द वैल्यू कैलकुलेट, नॉट द सोर्स। तो इन दोनों में से कैलकुलेट कौन सा होता है? एज कैलकुलेट हो सकता है, बर्थ डेट तो आपकी सेम ही रहेगी ना। अब अगर आपको नहीं भी पता होता है तो आप बाकी चीज़ों में कंपेयर करके निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच स्टूडेंट बोरोज मैनी बुक्स, ईच बुक इज़ बोरोड बाई मैनी स्टूडेंट्स ओवर टाइम। ठीक है, एक बुक को बार बार बोरो किया जा रहा है, तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप टाइप? स्टूडेंट और बुक्स का है। क्या आंसर आएगा? मैनी टू मैनी, बिकॉज देयर वुड बी मैनी स्टूडेंट्स एंड देयर वुड बी मैनी बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रैप क्या था? फेक प्रिसीजन का था कि मैनी टू मैनी, ए टू बी एंड बी टू ए। ठीक है, डायरेक्शनल वर्डिंग जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, इट्स मैनी टू मैनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ रिलेशनल डेटाबेस विच टर्म रिप्रेजेंट्स अ मिसिंग, अननोन और अनअवेलेबल एट्रीब्यूट वैल्यू। ये तो मैंने डायरेक्टली तुमको बताया था कि क्या होता है। तो 3 चीज़ें हैं, देखो, एम्प्टी टेबल नहीं, डिराइव वैल्यू क्या हो सकती है? नहीं, नल वैल्यू, यस, दिस इज व्हाट वी रेड। डिफ़ॉल्ट वैल्यू और जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू मिसिंग अननोन हो नहीं सकती, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिसिंग अननोन एंड अवेलेबल तीनों कैसे होगी? डिराइव वैल्यू भी कैसे होगी? ठीक है, तो हेयर आंसर इज नल वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डैश की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। यूनिकली आइडेंटिफाई करती है तो क्या हो सकती है अपनी, याद करो दिमाग में, कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। ठीक है, नल वैल्यू आपकी नहीं होती है और यूनिकली आइडेंटिफाई करनी चाहिए ईच रो। तो गलती से यहाँ पर फॉरेन की मत सोच लेना, क्योंकि फॉरेन की में यूनिकनेस नहीं होती। ठीक है, यूनिक और नॉट नल कौन सी होती है आपकी, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की। बाकी की आप याद करो कि बाकी की इसका क्या मतलब होता है। अगर आप यहाँ पर देख के नहीं बता पा रहे हो कि फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, मेन की क्या होती है, तो वापस इस लेक्चर में जाओ, नहीं तो घीस को पढ़ लो, मेरे नोट्स है उससे पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, पढ़ लो। ये 6 की जो लिखी है आपको आनी चाहिए। मेन की कुछ होती नहीं है, मिस की होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट अबाउट सुपर की एंड प्राइमरी की इज इनकरेक्ट। एवरी प्राइमरी की इज अ सुपर की। अब देखो, ये सब पढ़ने से पहले क्वेश्चन मुझे एक चीज़ याद था, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ये पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आप आंसर सीधे टिक कर लोगे। टिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, दैट एवरी सुपर की इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, करेक्ट सोच के सीधे देखते हैं, मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक मैंने ए ट्रिपल में भी गलती की थी, ऐसे ज्ञान देते रह गया था कि ऐसा नहीं करना होता, नहीं करना था, खुद गलती करके आ गया था। तो आज फिर से ज्ञान दे रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना, तुम लोग मत करना, क्योंकि मैंने जिसको बताया था उसने भी नहीं की थी। तो यहाँ इनकरेक्ट है। मैंने तो कैप्स में लिखा है, वहाँ पर कैप्स में लिख के नहीं आता है। बाकी सारी जो ऑप्शन दे रखे हैं दोज आर करेक्ट, सॉरी, ओनली दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच स्टेटमेंट अबाउट अ फॉरेन की इज ट्रू। फॉरेन की कौन सी की होती है, विच आइडेंटिटी विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू अदर टेबल। ठीक है, याद आ रहा है। इट इस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप, जो कि दो टेबल को रेफरेंस करने के काम आती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रिकॉर्ड, नहीं, ये तो प्राइमरी की का काम है। इट सॉर्ट्स रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कैसे कर लोगे, ये तो काम नहीं है, कर तो सकते हो आप, और फॉरेन की बोल के नहीं करोगे। इट इस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स यूजिंग रेफरेंस वैल्यूज़, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। इट मस्ट कंटेन ओनली यूनिक वैल्यूज़, नहीं, यूनिक होती तो फिर मैं हैवी रिकॉर्ड, मतलब पहला वाला भी करेक्ट होता, राइट, अपार्ट फ्रॉम द नॉट नल। इट कंटेन्स डुप्लीकेट और नल वैल्यू, हाँ ये करता है, कैन नॉट लिखा है यहाँ पर, तो ये गलत हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। याद करो, बताया था रेफरेंशियल की बोलते ही आपको क्या याद आना चाहिए, फॉरेन की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रेफरेंशियल एक्शन ऑटोमेटिकली, देखो रेफरेंशियल एक्शन आया है, ऑटोमेटिकली डिलीट्स रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड्स व्हेन द पेरेंट रिकॉर्ड इज डिलीटेड। पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट किया आपने तो चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमिट रोल बैक, से पॉइंट, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट तो आपका है, कास्केड भी आपका रेफरेंशियल एक्शन है। ये जो कमिट और रोल बैक है आपके, ये कमिट, रोल बैक और से पॉइंट, दीज आर ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आपको चूज करना है रेस्ट्रिक्ट का कास्केड में से। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, आपको डिलीट करने ही नहीं देगा, तो कास्केड बचे आपका, और कास्केड का हमको याद है कि वो क्या करता है, डिलीट करने की पॉसिबिलिटी दे देता है। सो दीज आर द 8 क्वेश्चन जो आपको करने भी। ठीक है, अब एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, दैट मनी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट नेवर क्रेडिटेड टू योर फ्रेंड। तो उसको कहते हैं, जो रूल ब्रेक हुआ था उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बोलते हैं, जो कि एसिड प्रॉपर्टीज़ का पहला पार्ट है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था, मतलब सभी में पूछा था, सेबी में भी बहुत लोगों से पूछा गया था, तो आपको भी याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, रुक जाना भी है, भागना मत, देर आर फ्यू थिंग्स भी नीड टू डू। यहाँ पर 1 पेज रिवीजन है। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना, एंड दिस वुड बी शेयर्ड इन माय टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर जाओ और वहाँ से उठा लेना, सेव कर लेना, एक बार आज पढ़ लेना, एक बार बाद में पढ़ लेना, आपको रट जाना चाहिए ये। ठीक है, चलो ठीक है, एक चीज़ याद रखना, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, बाकी कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज कमेंट से मेरे को पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, और मुझे अगर पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो तभी मेरा भी मन करता है पढ़ाने का, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता। सी आई हैव डिलीवर्ड रिजल्ट 7 आउट ऑफ 22,
इन सेबी। बाकी IBPS SOIT में रहेगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। HPCL में देयर वर 10 पीपल हु गॉट सिलेक्टेड फाइनली। तो अब IBPS SOIT का है, लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। बाय बाय।